Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to revise the chapter Environmental Chemistry. From that chapter you will get two VSAQs or one SAQ. या तो दो VSAQs पूछता नहीं तो एक SAQ पूछता है चैप्टर से. ज़्यादा VSAQs पूछ रहा, छोटे छोटे definitions है. Try to revise this chapter, complete this chapter today. Inshallah we will complete this chapter. What is the name of the chapter? Environmental chemistry. Environmental chemistry. So what is the environment? The things which are surrounded us. अपने अतराफ में जो भी चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोल के बुलाते हैं. Now, the relationship between the living being to their environment is called as ecosystem. बोल के बुलाते हैं ecosystem. Relationship between the living beings with their surroundings. Living beings है, बाजू का तरफ जो भी चीज़ें हैं, इसके और living beings के बीच में जो relationship है उसको क्या बोलते हैं? बोले तो ecosystem बोल के बुलाते हैं. Now you see that environment is classified into how many segments? There are 4 segments are there. Environmental segments है ये. First one is called as the atmosphere. Second one is the lithosphere. Next one is the hydrosphere. Next one is the biosphere. These are the 4 segments are there in the environment. Atmosphere, the air layer which is present on the earth is called as atmosphere. What is the lithosphere? Solid part in the environment, that is the earth and अंदर के जो भी minerals है सबको मिला के lithosphere में लेते हैं. और hydrosphere, the water which is present on the earth, that is called as hydrosphere. All the living beings together comes under the biosphere. Next, atmosphere again classified into 4 segments. There are 4 segments are there in the atmosphere. First one is the layer which is present about 11 kilometers from the surface of earth. Earth के surface से 11 किलोमीटर तक जो air का layer है उसको क्या बोल के बुलाते हैं? ट्रोपोस्फियर बोल के बुलाते हैं. ट्रोपोस्फियर. ओके, फिर उसके बाद में इसके बाद वाला स्ट्रेटोस्फियर 11 to up to 35 किलोमीटर तक ले लो. स्ट्रेटोस्फियर. उसके बाद में 11 to 50 किलोमीटर है, 50 to 85 किलोमीटर तक जो लेयर है उसको बोलते हैं मीसोस्फियर बोलते हैं. उसके ऊपर वाले लेयर को थर्मोस्फियर बोल के बुलाते हैं. So these are the 4 segments of the atmosphere. The layer, the air layer which is present on the surface of earth is called as atmosphere. There are 4 segments are there. Troposphere, air layer up to the 11 kilometer from the surface of earth is called as troposphere. After that 11 to 50, stratosphere is there. In the stratosphere, ozone layer is present, which prevents the living beings from the ultraviolet radiations which are coming from the sunlight. Sunlight से आने वाले UV radiation से ozone layer अपने को बचाता. So ozone layer कहाँ रहता भाई बोले तो क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेटोस्फियर में रहता ozone layer. ओके, नो नेक्स्ट उसके बाद मीसोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर है. These are the segments of the environment. Environment के segments है ये. फिर उसके बाद थोड़े टर्म्स समझा रहा हूं मैं. व्हाट इज द पोल्यूटेंट? व्हाट इज द कंटामिनेंट? Pollutant and contaminant. Okay, the thing which is present in the environment में पहले से है increase in the quantities due to the human activity. कौन सी भी एक्टिविटी से उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही and adversely affects the living beings. For example, carbon dioxide, it is already present in our atmosphere due to the motor vehicles, due to the industries की वजह से, मोटर व्हीकल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही
and that affects the living beings which are already present, increase in the quantities and affects the living being. Such type of the substances are called as pollutants. Carbon dioxide is an example for the pollutant. Contaminants which are not present in our environment, released due to the human activity only, which are not present, they are contaminated, they are released because due to the human activity and adversely affects the living beings. Those type of the substances are called as contaminants. For example, methyl isocyanide MIC gas is released during the Bhopal tragedy. Okay, इसकी वजह से diseases हुए. Next, mercury is released. Okay, so all these are the another simple example. DDT, this is the one type of the pesticide which is used to kill the pests. जो भी क्रॉप के ऊपर कीड़े मकोड़े ये जो भी आते या झाड़ को खराब करते, इनको उनको क्या करते, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के वास्ते, उनको मारने के वास्ते जो दवा यूज कर रहे हैं उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं. पेस्टिसाइड्स जनरली अपने एनवायरनमेंट में नहीं थे, कीड़ों को मारने के वास्ते पेस्टिसाइड डीडीटी को डाल रहे हैं, मगर वो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा. सो द थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन आवर atmosphere or environment which are released due to the human activities, those type of the substances are called as contaminants. Which are already present, increase in the quantities, affects the living beings, those are called as pollutants. Which are not present in our environment or atmosphere and released due to the human activities and affects the living beings, that type of the substances are called as contaminants. This is another definition. Now another one is there, that is the what is a receptor. A receptor is nothing but the thing which is affected by the pollutants or contaminants. The things which are affected by the pollutants are called as receptors. For example, Taj Mahal affects this acid rain affects the Taj Mahal. Due to the acid rains, the quality of the Taj Mahal is get disturbed. The white color becomes, that white color marble becomes to the yellow. So which is the receptor for acid rain? Acid rain की वजह से ताज महल खराब हो रहा, तो Taj Mahal is a receptor. The thing which is affected by the pollutants is called as a receptor. Our eyes are receptor to the smoke which is released by the motor vehicles. Motor vehicles से जो भी smoke आ रही, industry से जो भी smoke आ रही, उसकी वजह से अपने को खांसी आती और आंख जलते. So our eyes and lungs are receptor for what? For the smoke. So this is about the definition of receptor. After that, sink. What is sink? Sink किसको बोलते हैं? The things which are acting on the pollutants and removes them from environment. For example, carbon dioxide है भाई. Carbon dioxide एक pollutant है. Pollutant को कौन ले लेता भाई? झाड़ ले लेता. Pollutant ये carbon dioxide is absorbed by the trees. ओके, जो ट्रीज है, ये ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, एनवायरनमेंट से निकाल देते हैं. नॉट ओनली सी वाटर है, सी वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता. द बिग सिंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द सी वाटर. सो सिंक मीन्स द थिंग्स which are acting on the pollutants and removing them from the environment. That is called as sink. That is the definition. The another important definition is there. What is the definition? Writing the definition, that is the BOD and COD. ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा, BOD and COD, COD and BOD. Okay, what is the COD? Chemical oxygen demand. This is the parameter which is used to give the information how much impurity is there in the water. वाटर के अंदर कितनी impurity है बोलने के वास्ते COD वैल्यू यूज होती. Actually, what is the COD? See that this is the organic matter present in our water. जो सीवेज वाटर है भाई, ये डोमेस्टिक वेस्टेज का जो वाटर है, that contains the some organic matters. Organic matter कम रहा तो क्या होता, ज्यादा रहा तो COD ज्यादा आता. I will explain that. What is the COD? ये organic matter जितना कम है उसको ऑक्सीडाइज करने. Actually, we are oxidizing this organic matter. How much oxygen is required for the oxidation of this organic matter present in the
इम्प्योर वाटर सैंपल, इम्प्योर वाटर सैंपल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं मैं, तो कितना ऑक्सीडाइज करने के वास्ते कितना ऑक्सीजन होना, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, that is called as the chemical oxygen demand. The amount of oxygen required to oxidize the organic matter, the amount of oxygen, the amount of oxygen required to what, required to oxidize the organic matter, oxidize the organic matter present in the impure water, matter present in what, present in the impure water, impure water is called as, water is called as what, COD, chemical oxygen demand. If the organic matter is more, we need more amount of the oxygen. Okay, that means COD value is more if the impurity is more, if the organic matter is more. COD value is if less, if COD value is less, that is less impure water, whatever it may be, to give the content of impurity, how much impurity is there, this is useful. COD value, if the COD value is less, that is less impure water. Okay, now next, if the COD value is more, that is said to be उसमें impurity ज़्यादा है, organic matter ज़्यादा है, बोले ऐसा. This is the definition of COD. Now then about the BOD, it is also another parameter which gives the content of the, which gives the amount of impurity. If the BOD value is more, that is highly impure water. If the BOD value is less, that is the less impure water. Okay, now once again I am taking this container only. See that if the organic matter is there, microorganisms are also more. ओके, एक कंटेनर में इम्प्योर वाटर ले लिया भाई, इम्प्योर वाटर सैंपल को ले लेके मैं 5 दिन तक रख रहा हूँ, और टेम्परेचर क्या मेंटेन कर रहा हूँ, अपना रूम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्रीज के बीच में रख रहा हूँ. एट दिस टेम्परेचर हाउ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर पानी इम्प्योर है तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, पानी प्योर है तो कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते. इफ द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोर, दे यूटिलाइज मोर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई एम टेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज BOD. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड or consumed by the microorganisms during how many days? 5 days. At this temperature is called as BOD. The amount of oxygen utilized by the microorganisms during 5 days at the room temperature is called as biological oxygen or biochemical oxygen demand. The another definition is there, threshold limit value, TLV, threshold limit value. Simply that can be written like TLV. What is the threshold limit value? You know that industrial worker is working about how many hours in the industry? 8 hours. उसकी जो ड्यूटी का टाइम रहता 8 घंटे रहता. तो इंडस्ट्री में जो भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे, ये 8 घंटे जब काम कर रहा, तो ये टॉक्सिक पोल्यूटेंट कितने लेवल में रहना? This is the permissible level, permittable level of the toxic gases or pollutants which are released from the industries, which shows the harmful effect on the industrial worker who is going to work about 8 hours. 8 घंटे उन जब काम कर रहा, तो वहां पे गैसेस कौन से लेवल में रहना, पोल्यूटेंट्स कौन से लेवल में रहना बताते. सो जो लेवल है उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते. वो लेवल से बढ़ गए तो उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता, अगर वो लेवल से कम रहे तो कुछ भी नहीं होता. दैट इज द लेवल इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, permittable level or permissible level of the toxic pollutants which are harmful for the industrial worker who is going to work about 8 hours in the industry. 8 घंटे उन काम कर रहा, तो उसके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं होना. बोले तो वहां के जो पोल्यूटेंट्स है कौन से लेवल में रहना,
that is the level is called as threshold limit. आफ्टर दैट एयर पोल्यूशन के बारे में समझा रहे हैं. एयर पोल्यूशन, एयर इज गेट कंटामिनेटेड बाय द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट वन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स आर देयर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन फ्यूल को इनकम्प्लीट कंबशन करे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता. ज्यादा हवा नहीं मिल रही, कार्बन को बर्न कर रहे हैं, हवा ज्यादा नहीं है, कार्बन बर्न हो रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता. इंडस्ट्री से, मोटर व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन फ्यूल्स liberates carbon monoxide. You know this is the toxic one. Carbon monoxide toxic effect is it combines with the hemoglobin which is present in our blood. Red color pigment which is present in our blood is called as hemoglobin. So what is the function of this hemoglobin? That transports the oxygen. एक hemoglobin molecule 4 ऑक्सीजन एटम्स को पकड़ के ट्रांसफर करते रहता. तो ये जो है ना हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता. कार्बन मोनोऑक्साइड शोज द मोर एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन देन द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड को रहती. उसीलिए जब एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता. एज ए रिजल्ट ये ऑक्सीजन का बाइंड होना बंद हो जाता. रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस. आहिस्ता आहिस्ता सर में दर्द, वॉमिटिंग्स अगर ज्यादा भी हो गया तो कोमा में चले जाता एंड ऑल्सो दैट में लीड्स टू द डेथ. दिस इज अबाउट द टॉक्सिक इफेक्ट. The main reason for the toxic effect is carbon monoxide combines with the hemoglobin and forms the compound carboxyhemoglobin that stops the respiration process. So respiration को रोक देता. So this is about the toxic effect of carbon monoxide. And the second gas कार्बन की वजह से जो आ रही, कार्बन फ्यूल को यूज करने की वजह से जो आ रही वो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो अपना जो ग्लोब है, अपनी जो जमीन है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता. इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोल के बुलाते. ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. टेम्परेचर 45-50 तक चले जाता बिकॉज ड्यू टू व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग ओनली. व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग? आल्सो कॉल्ड एज greenhouse effect. Increase in the temperature is called as greenhouse effect. greenhouse effect किसकी वजह से आ रहा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा, वाटर वेपर्स की वजह से आ रहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से आ रहा. because due to these factors this is caused. So these are called as the greenhouse gases बोल के बुलाते. ग्रीन हाउस गैसेस कौन से है बोले तो CO2, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से लिखना. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले तो आई एम एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म. सी दैट आईआर रेडिएशंस जो भी सनलाइट से आ रहे हैं ना, वो अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहे तो यहाँ पे अर्थ पे गिर के फिर रिफ्लेक्ट हो जाते भाई, चले जाते. मगर ये ग्रीन हाउस गैसेस अगर है तो क्या होता? वाटर वेपर्स, ग्रीन हाउस गैसेस रहे तो ये आने वाले आईआर रेडिएशंस को इन लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी को इसकी ले लेते एंड इसकी एनर्जी कभी भी ऑलवेज अर्थ के सरफेस पे आते रहती. ड्यू टू दिस ब्लैंकेटिंग इफेक्ट, ब्लैंकेट कैसा काम करता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस भी ऐसे ही काम करते. तो ये क्या हो रहा बोले तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेके इसकी एनर्जी को अपने जमीन पे रिलीज कर रहे हैं गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस. Due to that temperature on the earth is increases, that is called as greenhouse effect or global warming. फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई. Greenhouse gases which are present on the surface of the earth in the atmosphere, they absorb the IR radiation which are coming from the sunlight and they releases that energy always on the surface of the earth. Due to that temperature over the temperature on the earth is increases, that is called as the global warming. global warming की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता, टेम्परेचर इंक्रीज होने से एवापोरेशन इंक्रीज होता, अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स होते, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल लॉस टेक्स प्लेस, ये एक है। सेकेंड वन, ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज हो जाता। थर्ड है पोलर रीजन में जो आइस कैप्स है वो मेल्ट हो जाते, मेल्ट होके सी वाटर में आ जाता, तो सी वाटर का लेवल इंक्रीज होके कोस्टल एरियाज में भी सबमर्ज्ड, मतलब जो भी समंदर के किनारे जो भी है वो एरियाज थोड़ा डूब जा सकते, आइलैंड्स है, कोस्टल एरिया सबमर्ज होते, डूब जाते। These are the some bad effects or consequences of the greenhouse effect. Increase in the temperature on the earth is called as greenhouse effect or global warming. Due to that, unexpected rainfalls and loss of agricultural takes place. Due to the global warming, groundwater level decreases, ice caps in the polar region are melt, due to that sea water level increases and coastal areas are submerged. These are the some consequences of greenhouse effect. So this is about the first type of pollutant, that is oxides of carbon. Second type of air pollutant is oxides of sulfur. Sulfur ka oxide, generally SO2 is liberated, that is oxidizes to the SO3, sulfur trioxide form होता। अगर SO2 का लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होता? If the SO2 level is increases, it dissolves in the moisture and responsible for the formation of acid. Acid formation होता, अपने एटमॉस्फेयर में एसिड फॉर्म होता। एसिड जो है ये फॉर्म होने के वास्ते SO2 रेस्पॉन्सिबल है। एसिड फिर जमीन पे गिरा तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोल के बुलाते। मैं समझाता हूं मैं। सो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, एसिड रेन को रेस्पॉन्सिबल है ये। इफ द सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इज इंक्रीजेस, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन द एयर, सल्फर को बर्न करे तो नहीं तो सल्फर को बर्न कर दिए तो सल्फर डाइऑक्साइड, इंडस्ट्री में सल्फर ओर्स को जलाते रहते, ZnS2 ZnS+3O2, इंडस्ट्री से भी कौन सी गैस लिबरेट होती भाई? सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती due to the industries, and by burning the sulfur sulfur dioxide gas is liberated and it is oxidizes to the sulfur trioxide, whatever it may be. If the level of the SO2 in the atmosphere increases, that is responsible for the acid rains, acid rain को responsible है। this SO2 reacts with the chlorophyll which is present in the plant, प्लांट के क्लोरोफिल से रिएक्ट करके वो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर तब्दील करता, येलो कलर में बदल देता, इसको क्लोरोसिस बोल के बुलाते। क्लोरोसिस की वजह से फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस होता। नॉट ओनली दैट SO2 का लेवल इंक्रीज हुआ तो SO2 अपने म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिएक्ट होता, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी आते। दिस इज अबाउट द बैड इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो ज्यादा नहीं पूछ रहा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर लिए या नहीं तो जेट प्लेन्स को यूज करे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वंस अगेन हायर ऑक्साइड्स को फॉर्म होता और अपने मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर में डिसॉल्व होके एसिड को फॉर्म करता। NO2 इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स, एसिड रेन्स को रेस्पॉन्सिबल है। सो अब एसिड रेन्स का नाम बार बार आ रहा, तो व्हाट आर एसिड रेन्स? एसिड रेन्स अभी मैं बोला भाई, फर्स्ट वन SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी और NO2 भी। इफ द लेवल्स ऑफ दिस in our atmosphere increases, what happened? SO2 dissolves in water and oxidizes and converted to the SO3. The dissolves in water, that gives the H2SO4. CO2 and dissolves in the moisture which is present in our air, converted to the H2CO3 carbonic acid. NO2 is converted to the N2O5 due to the oxidation, that is dissolves in the water which is present in the moisture and that forms the HNO3. All these are the acids which are formed by these pollutants, and these are combined with the rainwater and reaches on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस पे आके ये एसिड्स गिरते
सो रेन वाटर से भी कंबाइंड होते या ड्रॉपलेट्स बन के जमीन पे आके गिरते, सो दैट इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते। एसिड रेन की वजह से, एसिड की वजह से ये अर्थ का ऊपर का जो सरफेस है ना, ये थोड़ा खराब हो जाता, इसकी फर्टिलिटी फर्टिलिटी इसकी प्रोडक्शन एबिलिटी डिक्रीज होती। ओके, ज्यादा फर्टाइल नहीं रहता। अब एसिड गिर गया तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं आता एग्रीकल्चर में। तो ड्यू टू द एसिड रेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। नाउ अनदर, अगर ये पानी में गिर गया तो प्यूरिटी ऑफ वाटर, purity of drinking water is get disturbed and the aquatic life is also dies with the acid rain. This is another bad effect of the acid rain. Now then after that, the old buildings and Taj Mahal like constructions, their lifespan and their quality get reduced. जैसा ताजमहल है भाई, एसिड रेन पड़ गया उसके ऊपर तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती है और उसकी लाइफ स्पैन भी डिक्रीज होती। दिस इज अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन्स। तो उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, फ्रियॉन्स बोल के भी बुलाते हैं। दीज आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन विद द फ्लोरीन एंड क्लोरीन, C+2F2। एज a result of that CF4 is formed। फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन के साथ में फ्लोरीन CFCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। इनको सिंपली फ्रियॉन्स बोल के भी बुलाते हैं। ये फ्रियॉन्स आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद द क्लोरीन एंड फ्लोरीन, and these are easy to prepare and these are very much useful in the industry। इंडस्ट्री में ज्यादा यूजेस है इनके, और रेफ्रिजरेशन के अंदर भी ये फ्रियॉन्स को यूज करते। अगर फ्रियॉन्स अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए तो ये फ्रियॉन्स क्या करते, ड्यू टू देयर लेस डेंसिटी, डेंसिटी कम रहने की वजह से वो ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते और जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते। CFCl3 देखिए भाई, CFCl2 बनता और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को रिलीज करता। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्टिव है, इन स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन से कंबाइंड हो जाता, ClO2 फॉर्म हो जाता, ClO2 आता और नेसेंट ClO आता प्लस O3 जाके O2 बनता। इधर देखिए, इस तरीके से ओजोन लेयर से कंबाइंड हो रहा क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्रियॉन एटमॉस्फेयर में जाके और वहां के ओजोन से रिएक्ट होता है। इट रिएक्ट्स विद द ओजोन व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द ओजोन लेयर, ऐसा ऐसा रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा तो ओजोन की जो डेंसिटी है डिक्रीज होती। होल्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओजोन, ओजोन लेयर पे छोटे छोटे होल्स भी फॉर्म होते, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, होल्स फॉर्म होने को डेप्लीशन ऑफ ओजोन बोल के बुलाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द डेप्लीशन ऑफ ओजोन ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी काम कर रही, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट होती, ओजोन की डेंसिटी को डिक्रीज करती। ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द ओजोन लेयर, स्मॉल होल्स आर फॉर्म। ड्यू टू द डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, UV radiations which are coming from the sunlight are fall on the earth surface, earth पे गिरते, जिसकी वजह से अर्थ पे जो भी लिविंग बीइंग्स है उस पे क्या होता है, इफेक्ट होता। व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स है भाई, फर्स्ट वन, अपने स्किन पे गिर गई तो स्किन कैंसर आ सकता, बर्निंग ऑफ द स्किन, चमड़ा जलता, गर्मा में ज्यादा चमड़ी जलने का रीजन क्या है बोले तो यूवी रेस की वजह से। ये एनर्जेटिक रेस है, दोज आर मोर एनर्जेटिक देन दी विजिबल रेडिएशंस, विजिबल से भी ज्यादा एनर्जेटिक है, तो जिसकी वजह से स्किन कैंसर भी और बर्निंग ऑफ द स्किन टेक्स प्लेस। नो नेक्स्ट वन, डेप्लीशन ऑफ ओजोन की वजह से फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट इज ग्रेटली reduced। This is about, these are the some bad effects due to the depletion of ozone layer। और ओजोन लेयर की वजह से, मतलब डिप्लीशन होने की वजह से आंख पे गिर गए तो कैटरैक्ट, कैटरैक्ट आंख की मोती बनना शुरू हो जाती, कैटरैक्ट आई डिसीज शुरू हो जाता। ओके, दिस इज, these are the some bad effects of what depletion of ozone। Now then after the depletion of ozone, chlorofluorocarbons, ओके, स्मोक मिस्ट ये है भाई। व्हाट इज फॉग, इसके बारे में थोड़ा, तो हाइड्रोकार्बन्स लाइक द पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN,
PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट अपने हवा में है सो ऑक्सीजन से दूसरे कंपाउंड से कंबाइन हो जाता, कंबाइन होके एक हाइड्रोकार्बन है ये, और एक ही जात का है, पेरोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। ओके, these are oxidized in our moisture, और क्या होता है मिस से, उससे, इससे, धूल से, कचरे से मिलके एक धुआं के जैसा फॉर्म होता, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं भाई, फोटोकेमिकल स्मॉग बोल के बुलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से भी धुआं आता, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, उसको फॉग नहीं तो स्मॉग बोल के बुलाते। तो PAN और PBN थोड़े हाइड्रोकार्बन्स अपने मॉइस्चर में, अपने एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से और डस्ट पार्टिकल से मिलके एक ऐसा फॉग फॉर्म होता, उसको स्मॉग नहीं तो फॉग बोल के बुलाते। सो ड्यू टू दिस पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या होने वाला है, इसकी वजह से स्किन एलर्जी आती, स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी, एलर्जी, ओके, स्किन एलर्जी आती, स्किन एलर्जी। नॉट ओनली दैट, सेकेंड वन, सेल्यूलोस, जो प्लांट्स के अंदर जो सेल्यूलोस है, ऊपर का जो लेयर है, ये सेल्यूलोस ग्रेटली डिस्ट्रॉयड विद दी PAN। PAN की वजह से सेल्यूलोस खराब होता और स्किन डिसीजेस और रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीजेस आते हैं। दीज आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ द PAN। तो एयर पोल्यूशन में इतना बस बेटा। व्हाट इज द PAN, व्हाट इज द ओजोन डेप्लेशन, और व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और व्हाट इज द क्या है भाई, एसिड रेन्स, यही पूछ रहा ज्यादा एग्जाम में। Now then after that I am explaining you about the water pollution। वाटर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। वाटर पोल्यूशन में एक दो डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन बोलना है। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन। Unnecessary material which are added in the water, that is called as addition of the unnecessary material to the water। कंटामिनेशन हो रहे हैं, अननेसेसरी थिंग्स वाटर में आ रहे हैं और इसकी प्यूरिटी खराब हो जा रही, तो दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोल के बुलाते हैं, वाटर पोल्यूशन बोल के बुलाते हैं, वाटर पोल्यूशन। तो कौन से चीजों की वजह से अपना वाटर पोल्यूट होता? वाटर पोल्यूशन होने के वास्ते द फर्स्ट थिंग इज डोमेस्टिक वेस्टेज है भाई, डोमेस्टिक वेस्टेज। और एक ये कौन सा है भाई, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। नो नेक्स्ट वन, ऑयल है, ग्रीस है, ये पूरे सब्सटेंसेस की वजह से थोड़ी जगह मेटल्स भी, मेर्क्यूरी जैसा मेटल है, ये कैडमियम है, लेड, ऐसे मेटल्स भी थोड़ा ऐड हो रहे हैं इंडस्ट्री की वजह से। सो एडिशन ऑफ द सम मेटल्स, ग्रीस, ऑयल, पेंट्स, और डोमेस्टिक वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब की वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा। तो वाटर अगर पोल्यूट हो गया तो क्या होता, दैट चेंजेस इट्स कलर, कलर बदल जाता, और उसके बाद में टेस्ट भी बदल जाता, चेंजेस इट्स टेस्ट, एंड बू भी आना शुरू हो जाती। अगर कलर और टेस्ट और बू आना शुरू हो गई तो टूरिज्म जो है ज्यादा नहीं होता, ओके, बीचेस में जाने वाले नहीं जाते। सो वट एवर इट में बी। अब देखिए व्हाट आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स है भाई, कौन सी चीज से क्या होता, इसके बारे में मैं समझा रहा हूं मैं। फर्स्ट वन देखिए, मेटल्स की वजह से, मेटल्स अगर आ गए तो दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ओके, मेर्क्यूरी जैसा मेटल है, और लेड भी ज्यादा आ गया, ओके, टिन भी ज्यादा आ गया, और इसकी वजह से क्या होता, बाय द प्रेजेंस ऑफ द सम मेटल्स इन अवर पोर्टेबल वाटर, क्या हो रहा भाई, थोड़ा टॉक्सिक इफेक्ट होता, दैट में लीड्स टू द कैंसर। नाउ देन आफ्टर दैट व्हाट इज द यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन के बारे में समझा रहा हूं। यूट्रिफिकेशन, व्हाट इज द यूट्रिफिकेशन? यूट्रिफिकेशन इज नथिंग बट दिस हियर, ये इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। कौन सी इंडस्ट्री है भाई? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल है, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉन्ड में नहीं तो लेक में अगर रिलीज कर रहे हैं भाई। ड्यू टू दिस agricultural industry, some waste materials are released in these ponds or lakes। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा, वो वेस्ट मटेरियल को अगर पॉन्ड्स में या लेक्स में छोड़ दिए,
तो एग्रीकल्चरल वेस्टेज में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के वेस्टेज में ज्यादा फॉस्फेट्स रहते। ये फॉस्फेट्स क्या होते हैं मालूम है? ये प्लांट के ग्रोथ के वास्ते काम आते, प्लांट के ग्रोथ के वास्ते काम आते। तो पानी में छोड़ दिए तो ये पानी के अंदर जो वीड्स है, अननेसेसरी जो क्रॉप्स है, अननेसेसरी जो वीड्स है, जो प्लांट्स है, वो इंक्रीज इन द क्वांटिटीज, खूब बढ़ जाते। They are increased in more number. As a result of that, water in these is water level in this pond is decreases. Water level decrease होता, थोड़े दिन के बाद में pond marshy बन जाता और this pond is dried due to the increase in this weeds. Number of weeds increase हो रहे हैं, water का level decrease होके pond marshy बन रहा, dry हो रहा, तो इसको क्या बोल के बुलाते बोले तो eutrophication बोलते। It is because due to the agricultural waste when released in the water में रिलीज कर दिए, ponds के water में, lake के water में रिलीज करे agricultural waste that may contains, that agricultural waste contains the phosphates, those are useful for the growth of the weeds. So weeds present in the pond increase in the quantities, due to that this pond become marshy and dry, that is called as eutrophication बोल के बुलाते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द फ्लोरोसिस, इसके बारे में। फ्लोरोसिस ये ज्यादा नहीं पूछता, फ्लोरोसिस ज्यादा पहले पूछता था, ब्यूट्रिफिकेशन एक पूछता, वो डेफिनेशन याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट फ्लोरोसिस ड्यू टू द इंक्रीज इन द फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द वाटर। ओके, 10 ppm से ज्यादा फ्लोराइड आयन्स अगर पानी में आ गए, अपने पानी में पोर्टेबल वाटर में फ्लोराइड आयन्स बढ़ गए, तो दैट फ्लोराइड आयन्स कंबाइंस विद द कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ्स। बोन्स और टीथ में, बोन्स और टीथ में क्या रहता भाई? कैल्शियम रहता। ये कैल्शियम से कौन कंबाइंड होता? फ्लोराइड आयन। तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्म होता। तो क्या होता? बोन्स बिकम वीक, कमजोर हो जाते हैं बोन्स। Teeth become yellow, that is the disease is called as, क्या बोल के बुलाते? फ्लोरोसिस बोलते, फ्लोरोसिस। ओके, when the fluoride ion concentration in the potable water increases, that fluoride ions which are present in the water combines with the calcium which is present in the bones and teeth. As a result of that, calcium fluoride is formed. Due to that, bones become weak and teeth become yellow. This is the disease called as the fluorosis. फ्लोरोसिस का जो डिसीज है, इसके बारे में मैं समझा फ्लोरोसिस के बारे में, that is because due to the fluoride ions only. Okay, the quantity of the fluoride ions is detected with the color substance, that is the zirconium alizarin dye. This is the one substance is used that gives the different colors. If the quantity of the fluorine is more, that gives the one color. If the quantity of the fluorine is less, if the fluoride ions are less, that gives the different color. So this is about the testing for the fluoride ions. After that, removal of the fluoride ions is called as defluoridation. Fluoride ions को निकाल देने को defluoridation बोल के बुलाते। ओके, सो बस इतना याद रख लीजिए। दिस इज अबाउट द रिवीजन ऑफ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जितना भी हो सका कंटेंट में पढ़ाया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ऑल दिस आर द VSAQs। इसमें अगर एक SAQ आया तो ये चैप्टर से, what is that SAQ? Write about the acid rains and their consequences लिखो। और नेक्स्ट अबाउट दी what is greenhouse effect? ग्रीनहाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में लिखो। अगर आया तो और एक क्वेश्चन है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। इसमें ज्यादा एसिड रेन्स के बारे में पूछ रहा, या नहीं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, या नहीं तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन एंड देयर consequences. So this is about the revision of the environmental chemistry, and the remaining thing which is left for the revision is S block elements and P block elements, and also I was completed some part of the organic chemistry in the LAQs. LAQs में मैं एसिटिलीन और बेंजीन के प्रिपरेशन पढ़ाया, रिमेनिंग SAQs में पढ़ाता हूँ मैं। तो आफ्टर दिस, इसके बाद में जो है आपके फिफ्थ एस ब्लॉक एलिमेंट्स बचे हुए हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं।
S block elements, S block S block elements. Okay, these are present in which groups? What are the s block elements? Last shell में s orbital में last electron है. Okay, elements which are having lost electron in the s orbital are called as s block elements. S orbital electron, last electron is present in which orbital? S orbitals. Those are called as the s block elements. These are present in how many groups? Two groups. One is the 1a group and second one is the 2a group. 1a ग्रुप के कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन को बाजू पे रख दो. लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम. फ्रांशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स कौन से है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम और रेडियम. रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड है, ये दो ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोल के बुला रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इनके बारे में पढ़ना है. फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज दी अल्कली मेटल्स बिकॉज दीज आर बेसिक इन नेचर. बेसिक नेचर में है भाई, इनको वाटर में डाल दिए हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं. दोज आर आल्सो बेसिस. दीज आर कॉल्ड एज दी अल्कली मेटल्स. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई दी फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव और नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट. देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. इट कंटेन्स 3 शेल. फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड शेल. अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका सर का दर्द बन गया. ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये स्टेबल हो जाता, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को दे देता, जल्दी से इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन. तो टू गेट दी स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होने की चक्कर में जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देता. सो दैट्स व्हाई these elements are highly reactive. These are highly reactive and present in the combined state. These are not present in the free state. This is the VSAQ. Why the first A group elements are not present in the free state? Because these are highly reactive due to the NS1 configuration. They loses electron and forms the compounds. To get the stability, they loses the electron easily. So these are present in the compound state and these are not present in the free state. And secondary group elements are called as the alkaline earth metals बोल के बुलाते. अर्थ क्रस्ट में ये ज्यादा मिलते तो इसीलिए इनको alkali है, बेसिक नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिलते. So that's why these are called as alkaline earth metals. This is about the introduction of the first and second day. यस ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करा मैं, इंट्रोडक्शन दिया मैं. फिर उसके बाद में अब फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है. फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स में? फर्स्ट एंड ओवरऑल ये ले लो आप, एस एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. विच आर दोस क्वेश्चंस? फर्स्ट वन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ biological importance of what? Sodium, potassium, calcium and magnesium ions. बायोलॉजी में अपने सेल में या अपने केमिकल प्रोसेसेस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में या अपने को वट एवर इट में बी लिविंग बींग्स में ये कैसा काम आते? सोडियम, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस or biological application of the sodium, calcium, potassium and magnesium. And the second important question is, what is the plaster of Paris? Plaster of Paris क्या होता? Plaster of Paris, and write about the setting of the plaster of Paris. This is the another important thing. Now then, uses of the sodium hydroxide, caustic soda, and uses of the sodium carbonate. सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट्स को कैसा यूज करते, इसके बारे में लिखना है. नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इन दिस ग्रुप इज, हाउ दी NaOH इज प्रिपेयर्ड इन दी कैस्नर-केल्नर प्रोसेस. कैस्नर-केल्नर प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसा प्रिपेयर करते. इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वाला ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परसों लास्ट एग्जाम में ये यूजेस ऑफ Na2CO3 भी पूछा था.
ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई मैं इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस विल सी वन बाय वन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इसके बारे में समझा रहा हूं ओके सोडियम एंड पोटेशियम आयंस these are very important to maintain the osmotic pressure in the सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के वास्ते सोडियम पोटेशियम आयंस काम आते यानी ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाले हैं ये फर्स्ट वाला सेकंड वन दिस ट्रांसमिट्स द नर्व इंपल्सेस जो नर्व्स है ना तो मैसेज दिमाग से जो मैसेज जा रहा कोने कोने तक चले जाता अपने बॉडी तक तो sodium and potassium ions are important for the transfer of the nerve impulse को ट्रांसफर करने के वास्ते काम आता ओके सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है दिस मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर दिस मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर अराउंड द सेल वॉल नेक्स्ट वन दिस ट्रांसफर द नर्व impulses from the brain to various parts of our body various parts of body से brain तक nerve impulses को ट्रांसफर करते नेक्स्ट थोड़े किस्म के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता पोटाशियम फॉर द कन्वर्शन ऑफ द ATP to ADP potassium ion is useful and for the activation of the some enzymes potassium is useful okay these are the biological importance of sodium and potassium next importance of calcium and magnesium कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में फर्स्ट वन कैल्शियम जो है ना ये कैल्शियम इज यूजफुल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स में काम आता भाई ये और ये कैल्शियम है ना ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आता है इट इज यूज फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द बोन सो दैट्स व्हाई it is useful for the strengthening of the bone next magnesium is present in the chlorophyll में रहता एंड यूजफुल फॉर व्हाट फोटोसिंथेसिस और ये भी जो है एंजाइम एक्टिवेटर है एटीपी को एडीपी के ऐसा कन्वर्ट करने के वास्ते जो भी एंजाइम्स काम आ रहे हैं वो एंजाइम एक्टिवेटर है मैग्नीशियम सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम once again I'm repeating sodium and potassium transfer the nerve impulses and these maintains the osmotic pressure and activates the enzymes calcium is useful for blood clotting and it is useful for the strength of bones next one magnesium which is present in the chlorophyll and useful for the photosynthesis and it activates the some enzymes which are useful for the conversion of ATP to ADP these are the some uses of biological importance of the sodium potassium calcium and magnesium it is important SAQ नहीं तो VSAQ में भी सोडियम या पोटाशियम दोनों के मिला के पूछता हूँ विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह